digital age, if your business is not on the internet, then it is like opening a business but not telling anyone. Jai Hind, I Palak Tandon, student of journalism and mass communication, welcomes you all in the inaugural ceremony of this workshop. I'm truly as excited as you are to be the part of this incredible 2-day workshop organized by Department of Journalism and Mass Communication with collaboration of Maximum Learning Noida. Indeed, today marks the beginning of an inspiring journey into the world of trends of digital marketing. We all are gathered here to discover how to make the most of the digital age, where learning has no boundaries. Mr. Akshat Gupta sir, Mr. Arun Rathi sir, Ms. Isha ma'am, Mr. Vasu sir. For this, I request our respected guests, sir, and respected faculties to come forward for the lamp lighting. Thank you so much everyone. As the lamp is lit, now I would like to invite Assistant Professor Mr. Ram Prakash Tiwari sir from Journalism and Mass Communication Department for the official commencement of the workshop. Please sir. Jai Hind. I officially welcome each and everyone, and especially I welcome Mr. Akshat Gupta sir, Mr. Vasu Gupta ji, Arun Rathi sir, Isha ji and Aditya from Maximum Learning, because you guys have spared your time for our students for this wonderful workshop. Digital marketing and e-commerce is an essential part of our today's life, if I am not wrong, as all of us are on the internet and social media, and the best way to get our product, our services and ourselves promoted on the social media, it's digital marketing and e-commerce. So Maximum Learning has spared their time. They had given us a chance to collaborate with them for this workshop. I heartily welcomes all of you from the core of our hearts on the behalf of Swami Vivekanand Subharti University and Ganesh Shankar Vidyarthi Subharti Department of Journalism and Mass Communication. Along with this, I also welcome all the students from various departments, our HOD sir, respected Professor Dr. Subhash Chandra Thaledi sir, Dr. Preeti Singh ji, Ms. Shaili Sharma, Mr. Shikem Majid, Mr. Sanjay Jogral, Shubham Kaushik ji and Deepa for covering this entire program. Jai Hind. Thank you so much University for your welcoming. As Palak said, we are here for some beautiful, or we can say very unique educational course for you guys, as you are a building journalist. यहाँ पे मुझे लगता है I think there are many of you are from journalism, many of you are from science, arts and other. Traditional way of journalism इतना है नहीं, जैसे आप लोग journalism में आर्टिकल्स लिखते होंगे, ब्लॉग्स करते होंगे या अपने वीडियोस बनाते होंगे, पर अब आप देख रहे हैं कि हर कोई मोबाइल जर्नलिज्म या फिर एवरीबडी इज ऑन। कोई भी आजकल ऐसे नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं? आप मुझे खुद बताइए। वेरी लेस फ्रॉम हियर, नोबडी। बट आप में से कितने लोग फ़ोन स्क्रॉल करते हैं या फॉर अ मोमेंट अभी 2 मिनट पहले तक भी आप फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे? Be honest, come on, see, he is shooting me, this is happening. So what are all this? This is all, we have gone a digital. जैसे हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटल जाओ, वैसे ही डिजिटल जाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आजकल लोग 2 मिनट, हमारी रील्स भी जाती हैं, कुछ भी होता है इंस्टाग्राम पे, हम उसे 3 सेकेंड भी नहीं देते। सो गोइंग डिजिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, चाहे हम कुछ भी हो। एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट हम हमारे ब्लॉग्स लिख रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, तो हमें हमारी ऑडियंस तक रीच आउट करना है,
तो भी हमें डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल जाना होगा, या अगर हम फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी अगर हमें हमारी पेंटिंग्स देनी है, कुछ भी करना है, या हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो अगर हम आगे कुछ रिसर्च करते हैं या जिस भी फील्ड में जाते हैं, तो अगर हमें पब्लिक तक पहुंचना है तो हमें हर चीज़ के लिए डिजिटल होना पड़ेगा। बट डिजिटल होने के लिए भी हमें कुछ टूल्स या कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटली हम गलत भी हो सकते हैं, डिजिटली हम सही भी हो सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बट हर टाइप का डेटा हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो फॉर दैट वी आर हियर विद आवर ट्रेनर एंड ही गोना टीच यू फॉर कि आगे क्या होता है डिजिटली, आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे नहीं ग्रो कर सकते। बट बिफोर दैट वी वुड लाइक टू प्ले अ शॉर्ट वीडियो फॉर यू गाइज। आप उसे ध्यान से देखिए, उसके बाद वी विल हैव अ बिट ऑफ कॉन्वर्जेशन कि आप उससे क्या समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए, क्या जो। और कैसा चल रहा है भाई? पेंटिंग वगैरह कर रहा है? समझिए चल रहा है। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूँ मास्टर्स। अब तो बस मार्क हो रहा है। चल बढ़िया, मेरा भी ऑलमोस्ट यही चीज है। चल ठीक है, टाइम निकाल के चल मिलते हैं। लगा लो। आ जाओ, धीरे से आ जाओ। अरे याद नहीं ना? हाँ वो पेंटिंग रिव्यू दे रहा है। क्या बात है? मेरी पेंटिंग थी, मैंने ऑनलाइन करी। ऑनलाइन? कैसा? अरे आना बता। आई होगी वीडियो थोड़ी बहुत कुछ तो। वांट टू शेयर समथिंग? स्नेहा, या प्लीज गो है। डिजिटल मार्केटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, और अगर आप वैसे ही वही ओल्ड फैशन तरीकों से जाओगे तो आप इतनी लार्ज ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं नेटवर्किंग को, तो उससे हम लोग बहुत लार्ज ऑडियंस को बहुत कम टाइम में अप्रोच कर सकते हैं। ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बट आपने ये देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आता है, हम वही अमाउंट पे हम ही सेटल होकर हम वो चीज़ ले लेते हैं। पर वही हम मार्केट जाते हैं और हमारे लोकल वेंडर्स से कुछ लेने जाते हैं तो डेफिनेटली ऑफकोर्स फीमेल्स तो इधर उधर बार्गेन करती ही हैं। तो दिस इज़ व्हाट ऑल डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। डिजिटल मार्केटिंग आज की जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं और ज़्यादा आप लोगों का अभी टाइम नहीं लूँगी क्योंकि सेशन थोड़ा सा हमारा लेट हो गया है। बट बिफोर दैट आई लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर सुभाष चंद ऑन द स्टेज। सो कैन यू प्लीज। आज इस कार्यशाला में आए हुए हमारे जो है मैक्सिमम लर्निंग नोएडा से जो टीम आई हुई है। पहले तो इसके कंपनी के जो फाउंडर हैं
अक्षत गुप्ता जी, इसके डायरेक्टर हैं वासु गुप्ता जी, हेड ट्रेनर है अरुण राठी जी, कंटेंट राइटर आपके सामने ईशा गौतम मैडम, वीडियो एडिटर है आदित्य शर्मा जी, माइट भी हैं, आप ही हैं, एंड मैडम ग्राफिक डिजाइनर भी आई हुई हैं मैडम स्वाति चौधरी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र की ओर से, यहाँ के वाइस चांसलर की ओर से और अपने इस विभाग जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। ये स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग डिफरेंट फैकल्टीज़ के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मोबाइल जर्नलिज्म आपने चूज किया सब्जेक्ट, और हमने कोशिश किया है कि आपको रियल प्रोफेशनल से ये जानकारी दें। आपको मालूम हमारे आईटी सेक्शन के भी एक्सपर्ट्स आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आते हैं ना, आते हैं नहीं आते हैं, आईटी सेक्शन से भी आपको प्रोफेशनल पढ़ाने आते हैं। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और अगर आप मोबाइल जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, अगर उसके मेन एस्पेक्ट्स जो मेन वो हैं वो उनको नहीं पढ़ा आपने, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं पाते, तो ये आपका ज्ञान अधूरा रहेगा। हमारा काम ये है कि आप अगर डिजिटल मार्केट, इसका सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मोबाइल जर्नलिज्म का जो कॉन्टेंट उसका है ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको ध्यान दीजिए। मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, जो भी आपको कोर्स पढ़ाया जाता है पहले उसको सिलेबस को देखिए और फर्स्ट चेकआउट की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आउटकम्स क्या है, इसको करके आप क्या बनेंगे, और उसके करके आपने किया नहीं किया, अगर आप हो गए उस तरह तब तो कोर्स सक्सेसफुल है, नहीं तो बेकार है। तो हम चाहते हैं कि जो उस कोर्स में आपके है उसके अकॉर्डिंग आपको ज्ञान दिया जाए, आपको नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। आप लोग भी इतनी दूर दूर से पता नहीं कहाँ से आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो आपको अटेंशन देना है आपको कि आपको रियल अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिले। तो इस वर्कशॉप को कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपको रियल प्रोफेशनल से जानकारी मिले कि क्या है। आपको क्लासरूम में टीचर से तो मिल ही रही जानकारी, लेकिन आपको रियल प्रोफेशनल जो मार्केट में है उन लोगों से भी आपको जानकारी मिलेगी कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, किस तरह से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वर्कशॉप का उद्देश्य यही है। इस वर्कशॉप को करने के पीछे जो मेन मकसद ये है कि हमारे जो मीडिया से जुड़े हुए सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो उनके बारे में अच्छी तरह वाकिफ़ रहें। ये आपका सौभाग्य है कि आज आप डिजिटल मार्केटिंग जो मैक्सिमम लर्निंग कंपनी है, जो डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, उनके लोग यहाँ आए हुए हैं आपसे इंटरेक्ट होने के लिए, और उनका एक ही उद्देश्य है कि अगर आप पढ़ते हैं, यहाँ पे जानकारी देते हैं, अगर आपको और को वो वास्ट नॉलेज की ज़रूरत है, आप उनके यहाँ जा सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं उनके यहाँ, और आप कोर्स परस्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक हम दोनों लोगों के प्रयास से यहाँ पे एक सफल वार हमने लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए किया है। हम चाहते हैं आज डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पूरे यूनिवर्सिटी को है। जब मैंने प्रपोजल भेजा तो हमारे वाइस चांसलर साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप कंपनी से बात करिए कि भाई हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का वो दे सकते हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने कहा यस सर, व्हाई नॉट, मैं बात करूंगा। इसी तरह जब प्रोफेसर शल्या मैडम के पास प्रपोजल गया तो मैंने आप लोगों से बात की और दे आर वेरी एग्री। तो ये चीज़ें हैं कि जो व्यक्ति इसका इम्पोर्टेंस समझता है वो व्यक्ति तुरंत जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, और ये सब आपके लिए है। अगर वाइस चांसलर, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर वरीड हैं तो आपके फ्यूचर के लिए हैं। अगर इस विश्वविद्यालय की CEO वरीड हैं तो आपके लिए है। तो आपको उसका मैक्सिमम से, जैसे मैक्सिमम लर्निंग है ना, तो मैक्सिमम नॉलेज अटेन करना आपको, ये आप संकल्प रखिए और हर जगह में ये करिए। मैं उसमें ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप एक बार पुनः अपनी इस जो मैक्सिमम टीम आई, मैक्सिमम लर्निंग की टीम आई, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप अगर पढ़ रहे हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट, एक्टिव लिसनर बनिए, एक्टिव लिसनर। अगर आप एक्टिव लिसनिंग नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई ज्ञान नहीं मिल सकता है। अगर आप एक्टिव लिसनिंग से रहते हैं, एक्टिव लिसनर बनते हैं, आपको थोड़ा भी लेक्चर एकदम से समझ में आ जाएगा। और आप में से 99% स्टूडेंट बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट बनिए, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, थैंक यू।
I'd like to call upon Mr. Akshat Gupta, Maximum Learning founder and director. सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. आई लाइक टू थैंक HOD सर, सुभाष सर, फॉर इनवाइटिंग अस एंड द होल सुभाती मैनेजमेंट. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अब सेशन. आई होप आप सभी लोगों को इंटरेक्टिव लगेगा और हेल्पफुल लगेगा. ठीक है, तो उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगा अरुण सर को. अरुण सर प्लीज़. जय हिंद. चलो ये अच्छा लगा, जय हिंद पे जोश आता है. खैर, सो गाइज, माय नेम इज अरुण राठी एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड डिजिटल मार्केटिंग एंथुजियास्टिक. क्यों भाई? 2006 से कर रहा हूँ. द ब्यूटी ऑफ योर जनरेशन इज, आपकी जनरेशन में सबसे अच्छी चीज क्या है? इन शॉर्ट बताता हूँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं. ओके, 2008 में अपना ग्रेजुएशन मैंने किया, या 2005 में जब मैंने स्कूलिंग किया तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते थे. तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम PCMB. तो मेरे पास ऑप्शन थे. फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ले, मैकेनिकल कर ले, सिविल इंजीनियरिंग कर ले, मेडिकल में आ जाऊंगा तो MBBS हो गया एंड सो ऑन. यस, मैंने PMT क्रैक किया था, बट एट द सेम टाइम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, लिमिटेड स्ट्रीम्स थी जिनमें मैं जा सकता था. दैट टाइम समहाउ वी केम अक्रॉस अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. 2008 में जब डिजिटल मार्केटिंग करके बाहर आए, मार्केट में आए, इट वॉज लाइक मैनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, यार सिर्फ ग्रेजुएशन करके रह गया, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा. आज वही लोग कॉल करके कहते हैं, यार तेरी चाची एक एजुकेटेड है, शी इज वेरी वेल एजुकेटेड, बट शी प्रिफर टू बी अ हाउस ओनर और हाउस मैनेजर, कि यार कुछ पार्ट टाइम बता दे, कुछ ऐसा बता दे जिससे वो अपने आप को बिजी रख सकें और साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द डे पैसे कमा सकें. पढ़ किस लिए रहे हो? जॉब करने के लिए. जॉब किस लिए करनी है? पैसे कमाने के लिए. अल्टीमेटली इफ आई एम हियर, आई एम डूइंग माई जॉब, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, बट एट द सेम टाइम ये मेरा पैशन भी है. ओके, वो आपको मेरी टोन में नजर भी आ रहा होगा शायद. ओके, सो गाइस, मैं एक चीज कहना चाहूंगा. एक्चुअली मुझे लाइक पोडियम पे ऐसे बंद के रहना थोड़ा पसंद नहीं है, बट स्टिल वन थिंग क्लियरली, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस फील्ड में. पैरेलली जो सीख रहे हो करो, नौकरी साथ में कर रहे हो करो, बट डिजिटल मार्केटिंग आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स में विंग्स देता है जिसमें आप साथ में कई सारी चीजें कर सकते हो. ओके, सो आई विल शो यू फ्यू एग्जांपल्स एंड देन वी कैन स्टार्ट द थिंग्स. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू थिंग्स. मैं कुछ ये दिखाऊंगा जिससे आप अपना करियर आज से ही शुरू कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव टू आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं. ओके, और ये कर लोगे जितने जल्दी उतना ज्यादा अच्छा है. वन थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय थिंग्स, जब तक आपकी फेस वैल्यू नहीं है तब तक आपको मार्केट में अच्छा क्लाइंट और अच्छा वर्क नहीं मिलेगा. सो वन थिंग हाईली रिकमेंडेड आप सबके लिए, जितनी जल्दी हो सके गेट ऑनलाइन. लेट द पीपल रिकॉग्नाइज यू. आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है. सो टेकिंग दिस अहेड, मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगा. गाइस, 1 सेकंड प्लीज. लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्सन, मिस्टर बीस्ट, प्रोफेशनली अ सिविल इंजीनियर. हाँ, वो बात अलग है, इन्होंने चूज किया अपने लाइफस्टाइल को शोकेस करना यूट्यूब पे, विच मेरा टेस्ट नहीं है, या मैं नहीं कहूंगा कि ओके यू स्टार्ट डूइंग सच थिंग्स. नहीं, एजुकेशन ले रहे हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, जर्नलिज्म से हो, उस पर स्टिक करो, उसमें भी काफी अच्छा रेवेन्यू है. दिस पर्सन बाय प्रोफेशन इज अ सिविल इंजीनियर, बट यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज शेयर करते हैं, चीजें करते हैं, एंड जस्ट बाय शेयरिंग दैट थिंग ही इज जनरेटिंग अराउंड 16 लाख रुपीज पर मंथ. यूट्यूब खोलते हो, खोलते ही ज्यादातर ऐड आता है सामने. जिस किसी की भी वीडियो पे ऐड आता है वो कंपनी या YouTube आपको एक छोटा सा अमाउंट शेयर करती है आपकी वीडियो पे ऐड दिखाने के लिए. नाउ मिस्टर बीस्ट इज वन ऑफ द एग्जांपल. अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो ये आपके फील्ड रिलेटेड हो गया. डॉक्टर गौरव गर्ग, ओके, एजुकेटर हैं. नाउ हिज राइट नाउ करंट ट्रेंडिंग इज, दिस इज द मिनिमम वन, जो मैंने यहाँ पे स्लैब अभी शेयर किया हुआ है. दिस इज द मिनिमम वन. राइट नाउ ही इज जनरेटिंग मिनिमम ऑफ 40 लाख रुपीज फ्रॉम हिज यूट्यूब चैनल. अभी उनके इस टाइम पे 1,85,00,000 फॉलोअर्स हैं. तो स्टार्टिंग द सेम थिंग्स, यहाँ पे हमारे कुछ रेस्पेक्टेड प्रोफेसर्स भी बैठे हुए हैं, दैट माइट इंटरेस्ट देम एज वेल. पर अपार्ट फ्रॉम यू गाइज, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर सीनियर्स, आप लोगों की अगर मैं बात करूं,
फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात करूं, भाई फाइनल ईयर में आप आ गए हो, फर्स्ट ईयर में आप रहे हो, आपको पता है कौन से टॉपिक्स में आपको दिक्कत आई थी, आपको पता है किन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आई थी, या आपको पता है कहां पे किस टॉपिक्स में मुझे आगे और रीडिंग लेनी चाहिए। जनरेट दैट कंटेंट एंड पोस्ट दैट ऑनलाइन। दो फायदे मिलेंगे, पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, जो मैं पहले से कह रहा हूं। दूसरा बड़ा फायदा, आपको सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, देन यू विल स्टार्ट जनरेटिंग नॉट दैट बिग, आई विल नॉट लाई नॉट दैट बिग, बट समहाउ ग्रेजुअली एक अच्छे लेवल पे आ जाओगे। पढ़ाई छोड़ने को नहीं कह रहा हूं, पढ़ाई को ही मोनेटाइज करने को कह रहा हूं। फायदे दो, अगेन पहला आपका खुद का भी रिवीजन हुआ कि यार मैंने फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा था, ओके। दूसरा आपके जूनियर्स का फायदा कि एक्चुअली में उस टॉपिक में या उस सिनेरियोज में मुझे क्या करना चाहिए था। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है, एग्जांपल 2-3 साल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके निकलने वाला है, 2-3 साल में आप इतने बड़े फॉर्म में ऑनलाइन आ जाओगे कि आपका एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम काफी अच्छा यहां पे जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा एक पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हैं, अपना रेज्यूम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें आपने मेंशन किया हुआ है दैट यू आर देयर ऑन यूट्यूब, यू आर देयर। एक इंटरव्यूअर को सिर्फ एक नाम सर्च करना है और पूरा पता चल जाएगा कि ये एक स्टूडेंट कितना एलिजिबल है, इससे कितना आता है। नाउ ही इज अ सिविल इंजीनियर, चलो ये एक अलग फील्ड हो गई। लाइफ स्टाइल शो कर रहा है, नॉट माई कप ऑफ टी। सेम वे डॉक्टर गौरव आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ गए कुछ, ओके। हसन पाइकर हो गए, दैट ही इज फ्रॉम लाइक पॉलिटिशियल बैकग्राउंड, 4 लाख रुपए रेवेन्यू है। नाउ फे डिक्रोज न्यूज एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, तुम्हारी तरह ही हैं। एक छोटे से कमरे से चीज शुरू किया, लोकल सेलिब्रिटीज, लोकल पॉलिटिशियंस से इंटरेक्ट किया, चीजें की, उस इंटरेक्शन को, उस इंटरव्यू को ऑनलाइन डालना शुरू किया। नाउ शी इज अ पार्ट ऑफ वेरी बिग हाउस ऑफ लाइक मीडिया हाउस, एज वेल एज उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। अपनी सैलरी, अपने स्पॉन्सरशिप, अपने पेड प्रोग्राम से अलावा भी शी इज जनरेटिंग अराउंड 2 लाख रुपीज जस्ट बाय शोइंग दोज एड्स। तो हर फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने सिस्टम को मोनेटाइज कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द एग्जांपल मैं एक और दिखाऊंगा, दैट्स वेरी थिंग, ओके। कितने लोग जानते हैं इन्हें? कम ऑन, चैनल का नाम तो मुझे पता है, तुम्हें पता है। इनका नाम क्या है? सौरभ द्विवेदी, ओके, द ओनर एंड फाउंडर ऑफ लल्लन टॉप। जर्नलिज्म के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? कूल भाई। रेवेन्यू कितना है भाई साहब का? द ओनली रिक्वेस्ट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, अपने आप को ऑनलाइन लाओ, अपना फ्लेवर जनरेट करो, अपना तरीका जनरेट करो। इन्होंने क्या जनरेट किया? इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज को नहीं छोड़ा, अपने तरीकों को नहीं छोड़ा। दैट वाज समथिंग न्यू टू मीडिया। एक एंकर आ रही है, इंग्लिश में स्पीच देके चली गई, एक हिंदी स्पीच आ रहा है, देके चला गया। एग्जाम्पल कॉमन है यार, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस खुले पड़े हैं, एक से एक टॉप एंकर्स हैं। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग डिफरेंट, आप क्या कर रहे हो? मार्केट में वैल्यू बनानी है तो वो फ्लेवर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छे तरीके से भी कंटेंट को मोनेटाइज करवाया जा सकता है, अच्छे तरीके से भी नाम बिल्ड किया जा सकता है। जो वल्गर्स चल रहे हैं, शॉर्ट चल रहे हैं, उल्टे सीधे प्रैंक्स वाली वीडियो चल रही हैं, नॉट एट ऑल यार। आप अपनी फील्ड में रह के अपने तरीके से भी काफी अच्छा काम यहां पे कर सकते हैं, ओके। सो टॉकिंग अबाउट हिम, राइट नाउ इनके 3 करोड़ 15 लाख फॉलोअर्स हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए पर मंथ ये सिर्फ अपनी वीडियोस पे एड दिखा के कमाते हैं। नाउ ये किस मीडिया हाउस का पार्ट है? एनीवन? इंडिया टुडे ग्रुप्स, ओके। ही इज अ ऑफिशियल पार्टनर ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप, ओके। तो वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है, स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, कई सारे सेलिब्रिटी डेफिनेटली पेड इंटरव्यूज करवाते हैं, वो आ रहा है। तो ये सारी चीजें अलग हैं, बट दिस इज समथिंग ही इज जस्ट जनरेटिंग फ्रॉम यूट्यूब। तो एक कई सारे प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम है, फन करते हो करो, मना नहीं कर रहा। रील्स देखते हो देखो, जॉली चीजें देख रहे हो देखो, करो, एंटरटेनमेंट की चीज है करो, बट उसे साथ में अपने आप को बिल्ड करने के लिए भी यूज करो, ओके। नॉट जस्ट फैशन, नॉट जस्ट बाइकिंग पे जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, 2 चैनल बना लो, चलो 2 चैनल बना लो। यंग जनरेशन हो, मना नहीं करा, पबिंग जा रहे हो करो, फोटो शूट कर रहे हो डाल रहे हो डालो, बिल्कुल मना नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक चैनल प्रोफेशनली भी क्रिएट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर पेरेंट्स एंड एवरीवन विल आस्क यू क्या किया। भाई सुभारती इतनी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, इतने प्रोफेशनल्स यहाँ पे एक्सपर्टीज वाले प्रोफेसर्स आपको एजुकेट कर रहे हैं,
आपका दोस्त लग गया जॉब पे, वो लग गया जॉब पे, भाई तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? ओके, एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन इज तुमने क्या किया? तब तुम अपने पेरेंट्स को दिखाओगे नहीं, ये देखो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, फंकी वीडियोस बनाता हूं. दैट इज नॉट एट ऑल अ वर्थ. दैट इज नॉट एट ऑल अ वर्थ. सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, पहली चीज जल्दी से जल्दी अपने आप को ऑनलाइन लाओ प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से. हाँ, कॉर्पोरेट में भी पार्टियां होती हैं, हम भी पार्टियां करते हैं, दिवाली पार्टी भी थी, सक्सेस पार्टी भी थी, तो होती रहती हैं. शोकेस दैट ऑन दैट पर्टिकुलर चैनल. बट अपना जितना भी है, जितने भी जर्नलिज्म के लोग हैं गाइस, यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, वेरी प्रोएक्टिव. राहुल गांधी ने लड़की पसंद की, कल शादी है. दिस न्यूज विल स्टे देयर ओनली हार्डली फॉर 24 आवर्स. न्यूज का लाइफ स्पैन 24 आवर्स से ज्यादा नहीं होता. अब आप सोच रहे हो यार चल ठीक है, मैं कल इस पे वीडियो बनाऊंगा, कल तक तो यार वो बासी हो जाएगी, अगले दिन प्लान चल रहा है कि शादी कहां हो रही है. यू आर आउटडेटेड. तो जर्नलिज्म में जितने भी लोग हैं, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव. और आपके लिए सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ऑनलाइन आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस दूसरों से काफी ज्यादा है. कोई इसका रीजन बताएगा क्यों? व्हाई? जर्नलिज्म के कंटेंट को ऑनलाइन ग्रोथ ज्यादा जल्दी मिलती है कंपेयर टू किसी और के. कैन एनीवन गेस आइडिया कि क्यों? एनीवन? नो वन? एज आई जस्ट टोल्ड यू, न्यूज का लाइफ स्पैन 24 आवर्स से ज्यादा नहीं होता. गूगल नोज दैट, यूट्यूब नोज दैट, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नोज दैट. कोई भी न्यूज रिलेटेड कंटेंट आता है, वो हाथों हाथों इंडेक्स करते हैं, अपनी ऑडियंस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उसे एक विजिबिलिटी मिल सके. ओके, तो अगर आप जर्नलिज्म के बच्चे हैं या जर्नलिज्म का पार्ट में हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा. आपको न्यूज को रिसर्च भी करना है. ये नहीं है प्रोएक्टिवेशन के क्या बस न्यूज आई बिना पढ़े बिना कुछ किए उस पर कंटेंट डाल दिया. नहीं, वो उल्टा भी हो सकता है, फायरबैक भी हो सकता है. आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लिया, उसकी रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद अपना कंटेंट क्रिएट किया और आपने ऑनलाइन शोकेस कर दिया. बिकॉज न्यूज का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, तो आपको हर दिन एक नया कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहिए. ओके, आई यूज्ड टू रन वन ऑफ द लाइक न्यूज पोर्टल, और काफी अच्छा था. उसे मैंने एक अच्छे ब्रांड को बेचा भी है. तो आई डू दैट. मैं एक आइडिया सोचता हूं, उसे बनाता हूं और उसे एक ब्रांड को, एक लाला को बेच देता हूं. Zerk.com was one of my site, जो आज से अप्रोक्सीमेटली 15 साल पहले मैंने बेची थी $65,000 की. ओके, तो आई डू दैट. एंड्रॉइड एप्स का आइडिया सोचना, बनाना, बेचना. ओके, तो ऐसे ही मेरे पास एक न्यूज पोर्टल भी था जो मैंने काफी अच्छे अमाउंट में एक न्यूज हाउस को सेल किया था. सो ओवर हियर टुडे आई एम गोइंग टू शो यू फ्यू रिसोर्सेज जो आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जल्दी से जल्दी कंटेंट को डालने के लिए. ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, जर्नलिज्म या जो दूसरे हमारे लाइक फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप लोग अपने वर्क को, अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन प्रमोट करने के लिए किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो? फाइनल ईयर के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? कैन यू प्लीज रेज दी हैंड्स? ओनली 1 2 3 4 5. ठीक है, चलो अगले साल भाई इंटरव्यू के लिए जाना है. इफ आई आस्क यू क्या किया, कैन यू जस्ट आंसर दैट? कैन यू प्रूव दैट? रेज्यूम मेरे पास है, जो बोलोगे मान लूंगा, बट इफ आई से कैन यू प्रूव दैट, क्या किया, दूसरों से अलग क्या किया? एनीवन? नाइस जी मैम, कूल इनफ. चलो एट द सेम टाइम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ही है. जितने स्टूडेंट्स यहां बैठे हुए हैं जर्नलिज्म के, किस किस को पीआर बनानी आती है ये बताओ. अगर मेरी क्वालिटी या मेरा वर्क चेक करना है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो. रिक्रूटर के पास एक लिंक है, क्लिक किया, सबके हाथ में फोन होता है, क्लिक किया, वो पूरा चेक कर सकता है कि एक्चुअली में आपने क्या किया, क्या नहीं किया है. ओके, इनके हायर होने के चांसेस कंपैरेटिवली दूसरों से ज्यादा हो गए. प्लस गेटिंग अ बेटर सैलरी, वो भी इनके चांसेस ज्यादा हो गए. सब ने एक चीज पढ़ी है, सब एक आंसर कर रहे हैं. सबको कंपनी गई, चलो यार एक काम करो, 30,000 रुपए के रेट में सबको हायर कर लो, छुट्टी हो गया, आ गए सारे के सारे. इंटर्नशिप में क्या परफॉर्म करोगे वो अलग बात हो गई. ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे एक स्टूडेंट मिल रहा है जिसने कुछ एडिशनल किया है, कुछ सीखा है. डिजिटल मार्केटिंग के बिना नहीं चलेगा. प्रिंट मीडिया चल रही है, चलेगी, वो भी कभी बंद नहीं होगी, बट एवरीथिंग इज डिजिटल राइट नाउ. 90% ऑफ द कंपनीज आर ऑलरेडी ऑनलाइन. नेक्स्ट 2025 तक यही रेशियो 98-99% पहुंच जाएगा. ओके,
तो अगर आपको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए तो आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। चलिए ओके, टेल मी वन थिंग, कौन कौन इंस्टाग्राम पे है? अब कुछ हाथ खड़े दिखे। ओके, कितनों के फॉलोवर या सब्सक्राइबर 1 लाख से ऊपर है? नाइस। ओके, एनीवन एल्स? 50,000, 25,000? यार इंस्टाग्राम कर रहे हो, चलो फन के लिए कर रहे हो, उसे भी तो कर लो। सिटी का पेज है, गुड, एटलीस्ट दिखाने के लिए कुछ तो है, ठीक है। सो गाइज, या तो बिल्कुल ऊपर निकल जाओ या उस स्ट्रीम को छोड़ दो। सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, बीच में लटकने का कोई फायदा नहीं है, बीच में लटकने का कोई फायदा नहीं है। ओके, जो लोग 2006-8 में क्रिटिसाइज करते थे यार डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज भी नहीं होते, पूरे महीने में 1 GB इंटरनेट मिलता था और उसके रिचार्ज के पैसे भी घर वालों से बहुत मुश्किल से मिलते थे। आप तो 2 GB एक दिन में उड़ा देते हो। ओके, तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें सीखो, यूज कैसे करना है आपकी कॉल है, आपकी कॉल है, बट यार यूज कर लो, यूज कर लो, अच्छा रहेगा। यहां पे मैं 1-2 टूल्स आपको दिखाने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी किस तरह से चीजें कर सकते हैं। नाउ वन थिंग, नेशनल न्यूज के लिए आप कौन से पोर्टल का इस्तेमाल करते हो? सबसे पहले किस पोर्टल पे जाना पसंद करते हो पढ़ने के लिए? नाउ फाइन आर्ट्स के कितने, सॉरी फाइन आर्ट्स के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। चलो फाइन आर्ट्स, तुम्हारे लिए एक चीज है, मैंने इस दीवार पे एक सिंपल सा बनाना चिपका दिया विद अ सिल्वर टेप, सिल्वर टेप से उसे चिपका दिया। कितने का बेचोगे? फाइन आर्ट, चलो कितने का बिका होगा? एनी गेसेस? 12 करोड़ रुपए, दैट्स इट। सो कॉल्ड फाइन आर्ट्स वर्क, सो कॉल्ड एरोटिक आर्ट, वो बिका है सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ का। चेक कर लेना, ऑनलाइन मिल जाएगा। बनाना विद सिल्वर टेप आर्ट सोल्ड फॉर, मिल जाएगा तुम्हें। टोटल प्राइसिंग 12 करोड़ रुपए। डिस्प्ले करोगे, अपने आप को नाम बिल्ड करोगे तो मिट्टी से भी सोना निकाल लोगे, लिटरली मिट्टी से भी सोना निकाल लोगे। ऑनलाइन या ऑनलाइन चीजों में पैसे की कोई कमी नहीं है। तरीका है बेचने का, प्रेजेंटेशन का और आपका नाम, आपका नाम। एक लोकल सेलिब्रिटी को हायर कर लूंगा एक ऐड के लिए 15, 20, 50 हजार रुपए में। अमिताभ बच्चन लेता है 10 करोड़ रुपए, ठीक है। ओके, तो जितनी जल्दी अपनी ब्रांडिंग कर लोगे, छोटी से छोटी चीज को भी एक अच्छे लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाओगे। और इसके कुछ लाइव एग्जांपल्स मैं यहां पे आपको दिखा सकता हूं। सो द वेरी फर्स्ट साइट जो मैं आपको यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ओके, आई हैव मल्टीपल साइट्स ओपन फॉर यू गाइस। द वेरी फर्स्ट साइट दैट आई वुड लव टू शो यू, ये आप सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए है। आप अपने लिए फ्री में एक अच्छा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। ओके, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट चैट जीपीटी, बिल्कुल भी नहीं बता रहा, बट आई विल शो यू वन साइट जो एक ऐसा कंटेंट आपको लिख के देगी जिसे गूगल भी रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। ओके गाइस, द वेरी फर्स्ट साइट नेम इज एसईओ राइटिंग। एसईओ सबने सुना है, किस किस को पता है एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, इट इज अ मेथड टू रैंक योर कंटेंट ऑन गूगल। एल्गोरिथम है, स्टडी है, सबका रैंक नहीं होता है, ठीक है, बट यस देयर इज अ मेथड ऑफ डूइंग दैट। सो गाइस, ये साइट है seowriting.ai। ये फुल फ्लैश आपके लिए कंटेंट बना के दे देगी। इसे फाइन आर्ट्स की भी जरूरत है, फाइन आर्ट्स वालों को भी इसकी जरूरत है। क्यों? एक आर्ट है, उसे एक्सप्लेन किया हुआ है आपने, ठीक है। जर्नलिज्म वालों को तो है ही है, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक लेना है, चीजें लेनी है, वो आप दे सकते हो। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लिक ऑन क्रिएट न्यू। इसमें फ्री में जीमेल से आपका एक्सेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा आपका नहीं लगना है। नाउ आपका फ्रेंड यहाँ पे, तो आई विल आस्क हिम टू डू दिस। ओके, यू कैन क्लिक one blog post, one click blog post, just click on this. Now enter any keyword, जिस चीज के बारे में तुम लिखना चाहते हो, तुम्हारा मन है किसी भी टॉपिक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कवर करनी है, जस्ट एंटर दैट कीवर्ड, एनीथिंग जो तुम्हारा मन करे। व्हाई आई एम पिकिंग अ रैंडम टॉपिक? बिकॉज मेरे अपने फील्ड के हैं, डिजिटल मार्केटिंग के। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो लेट्स सी दिस, क्या ये आपको आपके दिमाग से रिलेटेड चीजें दे पा रहा है या नहीं। एंटर एनी कीवर्ड, कुछ भी। गाइज, एक एक आर्टिकल लिखने के लिए, एक एक आर्टिकल लिखने के लिए एक अच्छा कंटेंट राइटर 1 रुपी पर वर्ड से लेके 10 रुपीज पर वर्ड तक भी चार्ज कर लेता है। टाइम्स नाउ की एडिटर है एक मेरे पास, जो मेरे लिए कुछ कंटेंट लिखती हैं। शी चार्ज मी अराउंड 7 रुपीज 8 रुपीज पर वर्ड, एक शब्द लिखने के। 1000 वर्ड का आर्टिकल भी मैंने लिखवा दिया तो 8000 रुपए 7000 रुपए का बिल मेरे हाथ में आ जाता है कि सर ये बिल कैश करवा दो। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, डिफरेंट सीखते हैं, तो थोड़ा सा देखो बोर लगता है। अब मुझे ही कोई जर्मन या फ्रेंच पढ़ाने लगे तो मैं भी, दिस थिंग गोइंग टू सेव लॉट ऑफ मनी फॉर यू गाइस। ओके, ये आपका बहुत अच्छा पैसा बचाएगा, एंड इवन यू कैन राइट अ फुल फ्लैश पीआर फॉर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। ओके, मेरा टॉपिक है आज का जर्नलिज्म इन टुडेज टाइम। मुझे इस पे बात करनी है। मुझे टाइटल नहीं पता, सिंपली क्लिक ऑन जनरेट अ टाइटल। ये आपको टाइटल भी सजेस्ट कर देगा कि क्या टाइटल आप रख सकते हो। तो ये आ गया टाइटल, मॉडर्न जर्नलिज्म इन टुडेज टाइम, व्हाट हैज चेंज्ड। ओके,
भाई पुराने जर्नलिज्म में और आज के जर्नलिज्म में क्या चेंज हुआ है, ये इसने टाइटल बना के दे दिया है. राइट नाउ आई एम सेइंग इट इज गुड टू गो, आई एम कीपिंग दैट थिंग. ओके, सो अनदर थिंग, लैंग्वेज. किस कंट्री की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो? अमेरिकन को टारगेट कर रहे हो, इंग्लिश यूएस. इंडिया में कौन सी इंग्लिश यूज करते हैं? यूके. ओके, सो ओवर हियर आई प्रिफर, मेरा काम है यहां पे इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना, तो मैं सेलेक्ट करूंगा इंग्लिश यूके. यू कैन सेलेक्ट विद इंग्लिश यूके. ठीक है गाइस. नाउ टारगेटिंग ऑडियंस, टारगेटिंग कंट्री, यहां पे आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूएस सेलेक्ट कर लीजिएगा, यूके सेलेक्ट कर लीजिएगा. वर्ड का फर्क है, इंटरव्यू इंटरव्यू दोनों की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है. ओके, सो ओवर हियर आई हैव सिलेक्टेड कंट्री, टारगेटेड कंट्री एज. नाउ गाइस, लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, काफी चीजें हैं दैट यू विल लर्न योरसेल्फ, बट फिलहाल ये पूछ रहा है आर्टिकल की लैंग्वेज कितनी स्मूथ रखनी है. तो मैंने यहां कमांड दी, इतनी स्मूथ रखो कि 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी इस आर्टिकल को पढ़ ले और समझ ले. यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस ओवर हियर. कितना? 10th 12th ग्रेजुएट, प्रोफेशनल्स, आप लेवल सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग आपको आर्टिकल किसे पढ़ाना है. ओके, तो अभी मैंने लिखा है कि यार मेरी जो लैंग्वेज है वो ऐसी रखो कि 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी इस आर्टिकल को पढ़ ले और समझ ले. लीविंग ऑल दीज थिंग्स, मैं और कोई डिटेल नहीं डाल रहा हूं, नीचे कई सारी डिटेल हैं. आपको ये कीवर्ड चाहिए, ये चीजें लिखनी है, नहीं लिखनी है, कंक्लूजन देना है, नहीं देना है. यू कैन सेलेक्ट बाय योरसेल्फ कि आपको ये ऑप्शंस चाहिए या नहीं. टॉपिक दे दिया मैंने, फोकस कीवर्ड दे दिया, कंट्री बता दिया, लैंग्वेज बता दिया, और एक लास्ट चीज मैं यहां पे देता हूं कि मुझे कितना बड़ा आर्टिकल चाहिए. यू कैन सेलेक्ट द लेंथ एज वेल. ओके, आपको कितना बड़ा आर्टिकल चाहिए. सो बाय डिफॉल्ट इसने यहां पे मीडियम रेंज ले ली है, मैं अभी इसे स्मॉल कर देता हूं. स्मॉल मींस आपका आर्टिकल 1200 से 2400 वर्ड्स का होने वाला है. नाउ लेट्स क्लिक ऑन रन. वेट, जस्ट लीव इट प्लीज. गाइस, डन. ये आपके लिए आर्टिकल यहां पे जनरेट करने लगा है. ये सिर्फ आर्टिकल ही नहीं जनरेट कर रहा है, ये आपके लिए एआई से जनरेटेड इमेजेस भी इसमें इंसर्ट करेगा, एक अच्छी सी वीडियो भी इंसर्ट करेगा जो आपके टॉपिक की नॉलेज को सपोर्ट करेगी. तो यहां पे आप इस तरीके से अपने साइट के लिए, ब्लॉग के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए एक अच्छा कंटेंट, वेरी इलैबोरेटेड एंड वेरी डिटेल्ड कंटेंट यहां पे जनरेट कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी दिस. 15% डन. इट माइट टेक 2 मिनट्स के आसपास. मीनवाइल किसी को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, एनीथिंग, पैसा कितना है, करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कुछ भी जानना है, पूछ सकता है. जितने आर्टिकल जनरेट हो रहा है, एनीवन, एनीथिंग. जी, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स प्लीज, एनीवन. ओके, नाउ सर का एक बेसिक क्वेश्चन आ गया है कि भाई चैट जीपीटी से और इस कंटेंट में क्या फर्क है. आई कैन शो यू द लाइव थिंग्स, मैं अभी रन करके दिखा सकता हूं, बट इट हैज बीन नोटिस्ड ये आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, विकिपीडिया और अदर सोर्सेज का भी इस्तेमाल करता है. प्लस एट द सेम टाइम जब हमने ये आर्टिकल जनरेट किया था, इट आस्क्ड मी, ये भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता है. चैट जीपीटी के अलावा कई सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल करता है. तो इसके पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो मल्टीपल सोर्सेज से आती है, किसी एक सोर्स पे नहीं आती. Whereas चैट जीपीटी का अपना खुद का डेटाबेस है जो डेफिनेटली रिफाइन होते जा रहा है, डिफाइन होता जा रहा है, उसमें और इंफॉर्मेशन दिन ब दिन ऐड होती जा रही है, बट वो स्टिल सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन पे रिलाय करता है, दूसरे की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है. पर यहां पे it is currently using approximately 4 to 5 different AI tools to generate the information. Now I request you to please click on this article. इस पे बस normal click कर दो. Okay guys, there goes your article. एक पूरा का पूरा article आपके सामने बन के आ गया है. Okay, the world of journalism has changed a lot in recent years. This change and so on. Let's see the sub points. AI generated image आ गई आपकी पूरी मीडिया हाउस की स्क्रीन की and so on. तो आप नीचे जाएंगे, की पॉइंट्स आर्टिकल के, जैसे सर ने कहा आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी चीज को कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो की टेक अवे इसने यहां पे दे दिए हैं कि इस आर्टिकल में एक्चुअली में किस किस चीज के बारे में बात की गई है. नीचे आ गए, न्यूज रिपोर्टिंग को कैसे आया है, सोशल मीडिया का कैसे यूज हो रहा है, मोबाइल जर्नलिज्म, अगेन तुम्हारे सारे टॉपिक बिना बताए बिना करे इसने इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिए. एक रिकमेंडेड वीडियो भी इसने दे दी जो आपके टॉपिक को सपोर्ट करती है, जो इंफॉर्मेशन आपके आर्टिकल में है उसे सपोर्ट करती है. तो ये YouTube से भी कंटेंट ले रहा है, Google से भी कंटेंट ले रहा है, Bing से भी कंटेंट ले रहा है एंड सो ऑन. So journalism in today's time, the rise of citizen like reporting, each and everything is there for you guys. Fine art के हो कोई दिक्कत नहीं है, जर्नलिज्म के हो कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है, साइंस बैकग्राउंड के हो कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी टॉपिक आपको चाहिए ये प्रॉपर एक अच्छा सा डिजाइन करके आर्टिकल दे देगा. सिर्फ आपको ऊपर सबसे ऊपर दिए हुए कॉपी बटन पे क्लिक करना है और जहां पेस्ट करना है पेस्ट कर लो,
सारा कंटेंट एज इट इज वहां पे आ जाएगा। ओके, नाउ गाइस, सर का एक क्वेश्चन है, क्या ये प्लेगराइज्ड है कंटेंट या यूनिक है? वन थिंग, जब भी आप कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे एआई है, प्लेगरिज्म जरूर चेक कीजिए, सिंपल एज दैट। ओके, पब्लिश करने से पहले उसके लिए मैं एक साइट अभी आपको दिखा दूंगा, सर ने एक अच्छा पॉइंट ऐड कर दिया है। सो आई जस्ट शो यू अ साइट जो हाथों हाथ आपको बता देगी ये कंटेंट यूनिक है या डुप्लीकेट। ठीक है, दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए और उसमें क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़े लेवल का सेगमेंट यहां पे इसे यूज करता है। नाउ दिस साइड इज पेड बट फ्री एट वन एक्सटेंट। कितना? इट गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप इसके ऊपर 5 आर्टिकल जनरेट कर सकते हो। ओके, ईच आर्टिकल कैन बी ऑफ 1000 वर्ड। या तो 5000 वर्ड कंज्यूम कर लो या 5 आर्टिकल जनरेट कर लो, इतना ये फ्री देता है। उसके बाद ये पेड है। चैट जीपीटी वर्जन ला रहा है नए 4.0 4.2 जो भी वर्जन चल रहे हैं, नए वर्जन को पेड कर रहा है, पुराने वालों को फ्री करता जा रहा है। तो आप सेम टॉपिक पे चैट जीपीटी से जनरेट करना, अपनी पसंद का टॉपिक देखना, चैट जीपीटी से जनरेट करना और कंपैरिजन नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का और डिजाइनिंग का यहां पे आपको मिल जाएगा। नाउ सिंपली जस्ट कॉपी दैट, हम यहां कॉपी करके इसे जहां पे भी पेस्ट करेंगे सारा कंटेंट एज इट इज वहां पे आ जाएगा। ओके गाइस, सो मैंने यहां पे कुछ पीस ऑफ कंटेंट जितना दिया था सारा का सारा ले लिया है। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये कंटेंट यूनिक है या नहीं है। यूनिक नहीं भी होगा तो यूनिक करने का भी तरीका बता दूंगा, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, मुझे स्टूडेंट्स को वो चीजें पढ़ानी होती हैं जो मार्केट में फ्री में अवेलेबल हैं। डेफिनेटली आप सब में से कई सारे लोग हैं जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बाय कर सकते हैं, एक मोटी पेमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स की, बट यस देयर आर स्टूडेंट्स जो उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आई हैव टू मेक श्योर कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है, जो प्लेटफॉर्म्स उन्हें शोकेस हो रहे हैं, उनके पास फ्री वाला वर्जन या ट्रायल वर्जन अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सो लेट्स सी दिस कि इसने जो कंटेंट जनरेट किया है वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है। लाइक राइट नाउ आई एम जस्ट चेकिंग द प्लेगरिज्म। सो आई हैव जस्ट कलेक्टेड अ पीस ऑफ कंटेंट। मैं गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर प्लेगरिज्म चेकर, और यहाँ पे जो मेरी पर्सनल साइट है आप देख सकते हो, उस पर क्लिक भी हो रखा है, स्मॉल एसईओ टूल्स। कैन यू प्लीज क्लिक ऑन दैट? तो गाइस, स्मॉल एसईओ टूल एक एसईओ टूल साइट है, इस पे मल्टीपल एसईओ से रिलेटेड साइट्स लाइक टूल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक ही अवेलेबल है। So we got this box, just paste the content, right? Control V, that's it. Okay, नीचे आइए and click check on plagiarism. I click on check plagiarism, तो ये चेक करके बता देगा। Again, content को कैसे यूनिक करना है, क्या चीजें करनी है, ये सारी चीजें आती है। बिकॉज किसी भी साइट को अगर आप डाल रहे हो तो एक आर्टिकल में काम नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे कंटेंट जनरेट करते रहना पड़ेगा। 3% प्लेगरिज्म ऑलरेडी आ गया है एंड 26% यूनिक कंटेंट अभी ये दिखा रहा है। अगर ज्यादा कंटेंट, बड़ा कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट कॉपीड आता है, डुप्लीकेट दिखाता है, सिंपली रीराइट द आर्टिकल, सिंपल एज दैट, उसमें कम टाइम लगेगा। अगर कुछ लाइन्स हैं, ठीक है, जो डुप्लीकेट आ रही है, तो या तो उन्हें खुद पढ़ लो। My name is Arun Rathi. People know me with the name of Arun Rathi. My parents call me Arun. तीनों का मतलब एक ही है, चीज चेंज हो गई है, सेंस चेंज हो गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे हल्का फुल्का काम अपने आप भी करना पड़ेगा। Humanize.ai, I use that जी। Humanize.ai जो आपके एक फ्रेंड ने एक टूल सजेस्ट किया, पर्सनली यूज दैट। वो आपके लाइक AI जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमनाइज कर देता है। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस थिंग। 90% यूनिक एंड 10% कॉपीड। अब जो 10% कॉपीड आया है, आप इसे या तो ह्यूमनाइज से स्पिन करके ह्यूमन जनरेट कर लीजिए, जरूरत नहीं है उस पीस ऑफ कंटेंट की, रिमूव कर दीजिए, या खुद भी चेंज कर सकोगे। यार इतने एजुकेटेड तुम लोग हो, आई हैव सीन योर लाइक वे ऑफ स्पीकिंग एंड आंसरिंग। ठीक है, इतने एजुकेटेड आप लोग हो कि उस सेंटेंस को पढ़ के रीफ्रेज आप लोग आराम से कर सकते हैं। ओके, so we are done with this thing. ये हमने यहाँ पे एक जनरेट कर लिया। I click on this, so you can see 10% content is plagiarized and only 90% content is 100% unique. जो 10% है रीराइट कर लो, या जरूरत नहीं है तो उस कंटेंट को हटा दो। ठीक है, so any question regarding content generation इससे related प्लीज मैम जी। If we search a talent, what is generating, like which is happening in the current situation. For example, I have searched that what is happening in India right now, or what are the highlights points for India. Now इसके लिए मैं दूसरी चीज सजेस्ट करूंगा। राइट नाउ एवरी बिग मीडिया हाउसेज दे वर्क ऑन अ करंट इवेंट।
तो उसके लिए बेटर ये है कि आप जो भी करंट इवेंट की उन्होंने न्यूज पब्लिश किया है, उठाओ उसे, कॉपी करो एंड सिंपली रीफ्रेज इट एज इट इज। हो गया काम, ठीक है। देखो, दो चीजों में कॉपी स्ट्राइक जल्दी से आपको नहीं आती है। पहला, ई कॉमर्स प्रोडक्ट। भाई मैंने एक मोबाइल खरीदा फॉर एग्जांपल, चलो मैं ये ले लेता हूं, जो भी इस प्रोडक्ट को बेच रहा है वो यही कॉन्फ़िगरेशन देगा, वो यही स्पेसिफिकेशन देगा, वो इसे लेदर की नहीं बताएगा, वो इसे मेटल की ही बताएगा। ओके, तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स में आपको कभी भी कॉपी स्ट्राइक नहीं लगता है। एट द सेम टाइम अगर हम न्यूज की बात करें, ट्रंप जीत गए हैं फॉर एग्जाम्पल 10 लाख वोट से जीते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। आई एम नॉट अ फॉन्ड ऑफ न्यूज थिंग्स क्लियरली, ओके। मुझे अपनी फील्ड की न्यूज पढ़ना पसंद। ट्रंप 1 लाख वोटों से या 10 लाख वोटों से जीत गया। भाई तुम जब न्यूज लिखोगे, हेनरी के अपोजिट ही अड़ रहा था, लाइक फाइट कर रहा था, 10 लाख वोट से जीता, आप भी वही दोगे। सो यू डू नॉट हैव मच ऑफ द ऑप्शंस एंड गूगल अंडरस्टैंड दैट। केस में भी आपको कॉपीराइट का इशू बहुत कम आता है। नाउ कंटिन्यूइंग विद द सेम पॉइंट, हु विल टेल मी एक प्रेस रिलीज कितनी साइटों पे आप यूज कर सकते हो? प्रेस रिलीज विदाउट मेकिंग एनी एडिट सेम कितनी साइटों पे पब्लिश कर सकता हूं? एनीवन? भाई आर्ट वर्क किया है, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंटों कुछ आर्ट वर्क किया है? एनीवन किया है कुछ? कहां पे बेच सकते हो? कम ऑन गाइस, आई नीड द आंसर क्विकली। आप किसी भी प्रेस रिलीज को जो आप जनरेट कर रहे हो उसे मैक्सिमम 5 साइट्स पे एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है, विदाउट डूइंग एनीथिंग। नाउ प्रेस रिलीज की बात हुई है तो एक एग्जांपल देता हूं। चलो मुझे एक चीज बताओ, फॉर्ब्स साइट सुनी है किसने? सुनी है? फॉर्ब्स साइट्स पे किसके बारे में आर्टिकल आता है? सक्सेसफुल पीपल्स, ठीक है। फॉर्ब्स इंडिया भी है, ओके। नाउ इफ आई वांट माय नेम इन फॉर्ब्स लिस्ट, क्या मैं डलवा सकता हूं? चलो तुम्हारा ही एग्जांपल लेते हैं। तुम लोग अपने आप को अगर फॉर्ब्स में लिस्ट करवाना चाहते हो, डिस्प्ले करवाना चाहते हो, करवा सकते हो? एनी आइडिया गाइस? कम ऑन। चलो, आई डिड दिस for my younger brother and I just show you right away. Okay, I typed this Tarun Rathi, Estonia, Forbes. The very first is our business name, the breed business. हिंदुस्तान टाइम्स वाइम्स में तो बहुत सारे आर्टिकल डलवाते रहते हैं, वो तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बातें हैं। So that's a very easy thing, but this is something challenging जो यहाँ पे एक अचीव किया गया है। Forbes India, ये रहा, the breed business, Tarun known and he's my younger brother, ये रहा। सारी चीज पॉसिबल है, तरीका पता होना चाहिए। अगेन गाइस, तरीका पता होना चाहिए, वेरी इजी है। द ब्रीड बिजनेस एक सॉफ्टवेयर हमने लॉन्च किया था, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स थे। तो एक प्रोडक्ट था जिसका पैकेज वैल्यू $25,000 था एक सेल का। बाहर से लोग खरीद रहे थे, पर उनका था यार ट्रस्ट कैसे करें, इंडिया में बैठे हुए हो। जिन्होंने भी ये बोला, उन्हें बस ये एक लिंक फॉरवर्ड किया गया था, दैट्स इट, सेल आ गई थी। सो व्हाई आई एम शोइंग यू, हर प्लेटफॉर्म रीचेबल है, हर प्लेटफॉर्म रीचेबल है। आपको तरीका पता होना चाहिए और यही तरीका आप यहां पे सीखने वाले हो। I have a client, I have just one client and he is amongst the richest families in India. Okay? एक छोटा सा रिक्वेस्ट आया था, उन्हें 10 लाख फॉलोअर चाहिए थे, 5 लाख इंस्टाग्राम पे, 5 लाख यूं में से फेसबुक पे। सो व्हाट डू यू थिंक, 5 लाख फॉलोअर्स लाने में फेसबुक पे और 5 लाख इंस्टाग्राम पे लाने में कितना पैसा लग जाता है? एनीवन, एनी आइडिया? चलो, किसे 5 लाख फॉलोअर चाहिए जो पैसा खर्च करने को तैयार है? एनीवन? हाँ, जेन्युइन फॉलोअर्स। ओके गाइस, एक और चीज सर ने कहा, अरुण ऐड कर दे जेन्युइन फॉलोअर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो फेक फॉलोअर आते हैं जो 100 रुपए में आपको 1000 मिल जाते हैं, वो से हम कहते हैं सोशल पैनल से जो खरीदे जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जेन्युइन फॉलोअर्स की बात कर रहा हूं, जहां पे आप प्रॉपरली अपने अकाउंट का एड चला रहे हो, लोग एड देख रहे हैं और वो उससे आपको फॉलो कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू फील, अगर मुझे 10 लाख फॉलोअर चाहिए तो कितना पैसा लग जाना चाहिए? अच्छा, कभी किसी ने एड ट्राई किए? एड चला के देखे, हाँ जी, किस चीज का और क्या रिस्पॉन्स रहा? ठीक है, 30,000 व्यूज पे उसे कितने सब्सक्राइबर मिले थे? मतलब 400 रुपीज में कितने सब्सक्राइबर मिले से? 100। चलो, 400 रुपए में 100 फॉलोअर्स, मतलब 4 रुपए का एक फॉलोअर, तो 10 लाख के लिए कितना बिल बनना चाहिए? 40 लाख। खैर, माय क्लाइंट गेव मी अ चैलेंज। मैं लाइव अकाउंट दिखा सकता हूं इसमें, मेरा ही लैपटॉप कनेक्टेड है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माय क्लाइंट गेव मी अ चैलेंज कि यार अरुण, मैं तुझे दूंगा 1 रुपए एक फॉलोअर का और बाद में 1 लाख रुपए तेरी सर्विस चार्जेस, टोटल 11 लाख रुपए, ठीक है। सो अगेन 11 लाख तो क्लाइंट ने बोले हैं, भाई उसमें मुझे भी पैसा बचाना है। सो व्हाट डू यू फील, ये टास्क कितने में अचीव हुआ होगा? चलो बता देता हूं, टोटल ये टास्क अचीव हुआ था 3,90,000 रुपए में, प्लस जीएसटी अगर लगा दूं तो 4,20,000 रुपए में। ऑन अ वन शॉट आई सेव्ड अराउंड 6 लाख प्लस इन अ मंथ, सीधा सीधा। तो गाइज, यहां पे डिजिटल मार्केटिंग सीखने का एक और सबसे बड़ा आपका फायदा क्या है, बल्कि 2 फायदे फिर गिना देता हूं। ये हैं, कोई आपके लिए काम कर रहा है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो वो काम कैसे कर रहा है। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, चल रहा है मेरा काम, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये मैं चेक कर सकता हूं। दूसरा, जब आप कोई काम खुद करोगे ना,
10 रुपए अगर कोई आपको बाहर चार्ज कर रहा है, वही काम आपका 3-3.5 रुपए में हो जाएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, आई कैन शो यू द लाइव अकाउंट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मेरे अकाउंट से ऐड चले थे। ओके, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, या आप कह सकते हैं इसमें आपके पास चांसेस हैं ग्रोथ के लिए। जर्नलिज्म के हो, फाइन आर्ट्स के हो, पॉलिटिकल साइंस के हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्क्रीन अभी दिखाई थी उसमें पॉलिटिकल साइंस के ज्यादा लोग थे। ओके, फाइन आर्ट्स वालों के लिए एक जगह आर्ट मत शोकेस करो। देयर आर 13 बिग हाउसेस जिसपे फाइन आर्ट्स के जो वर्क है बहुत अच्छी कीमत पे बिकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट पे कोई एमआरपी है ही नहीं। जितना मुंह से बोलोगे सामने वाला नेगोशिएट करेगा, आपको दे देगा, बट वो तब होगा जब आपकी फेस वैल्यू बनी होगी। आपको कोई जानता ही नहीं है, उसके लिए आप एक लोकल बंदे हो जो स्ट्रीट साइड पे शायद बैठ के आर्ट करता है, वो आपको वैल्यू नहीं देगा। आप एक नॉर्मल जर्नलिज्म हो, एक बच्चा है जो पढ़ के आ गया, डेफिनेटली ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन पीछे से है, सुभारती से पढ़ के आया है, बट पढ़ के आ गया है सिर्फ। ठीक है भाई, पीआर लिख के दिखा दे, आधे बच्चे तो उसमें बाहर हो गए। जैसे मैंने पूछा किस किस ने पीआर लिखी है, तो किसी का भी हाथ नहीं खड़ा हुआ, एक हुआ था शायद। ओके, आधे बच्चे तो वहां बाहर हो गए, बच्चे आधे बच्चे। अब बताओ भाई क्या करना है, किसने क्या किया है? तो वो क्या किया है वाला फैक्टर आपको क्रिएट करना है विद अ डिफरेंस। विद अ डिफरेंस, सब एक जैसा करोगे, एक लेवल पे आके कर जाओगे, ट्रस्ट मी लाइफ काट लोगे, अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ईएमआई पे कर दोगे, अच्छा काम कर लोगे। बट व्हेन इट्स कम टू फन, व्हेन इट्स कम टू फन, ठीक है, नहीं एंजॉय कर पाओगे। वो काम तभी होगा जब तुम्हारा फेस मार्केट में रिकॉग्नाइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो गाइस, शोइंग यू दैट थिंग, दिस इज गोइंग द लास्ट थिंग। इसके बाद आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, और हम कल क्या करने वाले हैं इसके बारे में बताऊंगा टुमारो के। टुमारो आई विल टेल यू फेसबुक पे आप अपना वर्क कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे शोकेस कर सकते हो। दूसरी चीज, इंस्टाग्राम को कैसे आप यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, कैसे उससे अमाउंट जनरेट कर सकते हो। प्लस जो इन फ्यूचर हमारा एक सेमिनार यहाँ पे 10 डेज का होने वाला है विद द मैनेजमेंट परमिशन, अगर मिलती है तो, उसमें क्या टॉपिक्स आप कवर करने वाले हैं, वो किस तरह की आपको ग्रोथ लाके दे सकते हैं। एंड व्हाई आई लव दिस फील्ड, उसका एक और रीजन है। माई लास्ट जॉब वॉज एज एन एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फॉर रियलिटी असिस्टेंट। मैं उनके पूरे इंडिया का डिजिटल मार्केटिंग देख रहा था। क्यों छोड़ा? बहुत हेक्टिक था, नॉट लाई, बहुत हेक्टिक था। ओके, आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 16 months आई मूव बैक टू ट्रेनिंग। क्यों? 2 रीजन अगेन, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, बात करने में। दूसरी चीज, आप लोगों की जो आइडियाज हैं, आप लोग कई बार उसे इंप्लीमेंट नहीं करते हो ड्यू टू लैक ऑफ मनी या लैक ऑफ कॉन्शियस कि यार फेलियर ना हो जाए। बट इफ दैट आइडिया स्ट्राइक्स मी कि यार अच्छा लग रहा है, चल ट्राई करके देखते हैं, आई ऑलवेज ट्राई दैट। तो आप लोगों की वजह से मुझे मेरे काम को बूम करने के तरीके मिलते रहते हैं। सो आई एम अ लर्नर एज वेल, आप लोगों से मैं भी सीखता हूं। एंड गाइज, डिजिटल मार्केटिंग इज आईटी फील्ड, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। शोइंग फॉर द लास्ट टाइम, जस्ट अ सेकंड। ओके, ये एक एंटरटेनमेंट पेज था उनका, जो उससे चाहिए था 5 लाख फॉलोवर इन्हें यहाँ पे लाके दिए हैं, और 5 लाख सेम फॉलोवर्स उन्हें इंस्टाग्राम पे लाके दिए हैं। अब इसके लिए कितना पैसा खर्च हुआ है ये भी आपको दिखा देता हूं। मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, उनके लिए मल्टीपल एड्स चलते रहते हैं। व्हाई आई एम शोइंग यू, आई एम नॉट शोइंग यू बिकॉज मैं ये कर पा रहा हूं, बिकॉज इसमें स्कोप और मार्जिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पे, पैसा वो है जो तुम मांगो, पैसा वो है जो तुम मांगो, जो सामने वाला दे सके। इसमें कोई एमआरपी नहीं है, एमआरपी नहीं है। सर आ रहे हैं, सर को शायद मैंने 10 लाख का बिल बता दिया, अब सर ने अपना एक फ्रेंड रेकमेंड कर दिया, मुझे लग रहा है अच्छा जगुआर में है, चल भाई 20 लाख का बिल दे दिया, सर 20 लाख का बिल लगेगा। तो यहाँ पे कोई एमआरपी नहीं है। आपकी वैल्यू, आपकी फेस वैल्यू, आपका प्रीवियस वर्क, वो आपको डिफाइन करता है। पैसा देने के लिए मार्केट में क्लाइंट बैठे हुए हैं, एक अच्छी रिपोर्ट के लिए लोग बैठे हुए हैं, एक अच्छी आर्ट के लिए, फाइन वर्क के लिए लोग बैठे हुए हैं, जस्ट टू बाय इट एंड शोकेस दैट इन देयर ड्राइंग रूम। सीधा सीधा पैसे की मार्केट में अच्छे क्लाइंट्स की, मोटे क्लाइंट्स की कमी नहीं है। सो आई हैव मल्टीपल क्लाइंट्स, जिनके लिए मैंने मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे बना रखे हैं। तो आई गो विद दिस। फॉलोवर लाने के लिए उनका एड 3,56,00,000 लोगों को दिखाया गया, अलग अलग लोग फ्रॉम इंडिया। 3,56,00,000 पीपल एक्चुअली सॉ दैट एड। डेफिनेटली उसमें से आप लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि पूरा इंडिया से एड चला रहे थे हम लोग। एंड इन टोटल अगर मैं बात करूं तो ये एड जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया अप्रोक्सीमेटली 6,42,00,000 बार। तो कई लोगों को 2-2, 3-3 बार भी एड दिखा है, और इसके लिए टोटल खर्चा मेरा आया है 3,89,000 रुपीज
प्लस GST। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग के साथ अपनी एजुकेशन को मिक्स करो। नौकरी मैं भी कर रहा हूं, सैलरी मिल रही है, ठीक है, वो चलेगी। कोर्स पूरा करो, जॉब पे लगो, सैलरी लो, फिक्स 1 तारीख को आनी है, पता है। इसके साथ क्या बिल्ड करना है वो चीज देखो, और वो अपॉर्चुनिटी, वो चीजें आपको मिलती हैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ। इंस्टाग्राम पसंद है वो करो, यूट्यूब पसंद है वो करो, SEO पसंद है वो करो। मेरा फेवरेट है ऐड चलाना। आई लव टू डू एडवर्टीजमेंट्स, ओके। चाहे गूगल ऐड है, चाहे फेसबुक ऐड है, अच्छा है, पैसा फेंको, तमाशा देखो वाला काम है। अच्छा क्लाइंट मिलना चाहिए, अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए, गुड टू गो, ओके। सारी चीजों में हाथ डालने की जरूरत नहीं है, बट कोई भी 2 चीजें बहुत अच्छे से सीख के चलो, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी नाइस सक्सेस। सो बिफोर आई वाइंड अप, कुछ भी जानना है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानो, एंड टुमारो एज आई टोल्ड यू, अगेन आई विल शो यू फ्यू टूल्स जो आपको काफी अच्छी ग्रोथ देंगे, फ्री में अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए, ओके। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना पेशेंस दिखाया, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। कुछ क्वेश्चन भी आए। नाउ ईशा मैम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम and take on the stage. Thank you so much, sir. I hope you guys enjoyed or learned something, and this workshop will gonna continue tomorrow also. But just before winding up, a bit sort of a small quiz for you guys, and there are going to be rewards, of course. So you excited to play a bit? आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आज मैं, of course. But it's very small quiz, basic questions about digital marketing and other stuff. I hope आप लोग interactive रहें. And just one thing, जिसको भी आंसर पता हो प्लीज़ अपना हाथ रेज कर देना, वहाँ से आंसर्स मत देना, नहीं तो फिर मुझे पता नहीं पड़ेगा. So the first question is, who is often referred to as the father of modern marketing? Anyone? Any guesses? It's okay if you're not right. You can guess, of course. You can you stand? थोड़ा सा loud बोल दो please. Let's take the answer. Yeah, clap for him. Very good. What's your name? Alok. Okay. So let's move to next question. When did Google AdWords, now known as the Google Ad, first launch? Let's check the answer for that. Yeah. What's your name? Manisha. Okay. What was the first widely popular social media platform? Come on, journalism students. Yeah. Yes, ma'am. Facebook. Let's check the answer. It's MySpace. It's okay. Well tried. When did Facebook introduce business pages allowing brands to have presence on the platform? Any guesses? Something, thoda sa? Yeah. Yes, ma'am. Nice. What's your name? What was the first clickable brand ad and which company created it? No. It's okay. But ठीक है, मतलब आंसर्स, हाँ, वेरी गुड, थैंक यू मैम, आई अप्रिशिएट यू. आंसर्स नहीं भी आ रहे हैं तो ये आंसर्स याद रखना, कल फिर से पूछ सकती हूँ मैं. Who founded Amazon? A company. Okay, I'll give him a chance for now. Yes. What do you think, guys? Is he correct? Yes. Are you sure? Yes. Okay. What's your name? Loud. A bit loud. Arun. Atul. Okay. So the last question is, when did the concept of content marketing being to gain popularity? यहाँ कितने हैं journalism के students कितने हैं? As I also belong to a journalism background, I expect an answer from you guys. Okay, yes ma'am. 90? What do you think? She's correct? Sure? Journalism हमारे students को sure है? Oh. It's okay. Okay, thank you so much. Thank you. So guys, thank you so much. And once again, clap for yourself for being so attentive and a great audience today. Thank you so much. And I hope आप लोग को कल भी देखने के लिए. Tomorrow's workshop gonna be also very nice. ट्रिगर पॉइंट तो पता चल गया कि कौन सा है. खैर, दैट्स नाइस. सो गाइस, वन थिंग, कल जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे.
बिकॉज कल हमने एक ओवरव्यू देखा था आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। नाउ कुछ कंपैरिजन भी थे कल आपके कि भाई चैट जीपीटी अच्छा है या सर जो टूल आपने दिखाया ये अच्छा है। तो वी विल सी दैट कौन सा टूल यहाँ पे बेटर काम करता है और किस तरह से काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट I have especially find out the one tool that will help you generate a complete YouTube channel for yourself. टॉपिक कोई भी हो और जर्नलिज्म वालों का तो बहुत अच्छा है, ओके। तो डेफिनेटली आई एम नॉट हियर टू सपोर्ट जर्नलिज्म सॉर्ट ऑफ थिंग, बट यस प्रीवियसली इट वाज इन माय माइंड कि यहाँ पे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं तो जो एग्जांपल्स यहाँ पे मेजरली कलेक्ट किए हुए हैं वो जर्नलिज्म फील्ड से रिलेटेड हैं, ओके गाइस। सो लेट्स कंटिन्यू। करेक्ट शुरू? SEO राइटिंग टूल। और मैं आज आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाऊंगा, चैट जीपीटी में और बेसिकली ये टूल जो हमने यूज किया था इसमें क्या फर्क है। डेफिनेटली डिजाइन, इंफॉर्मेशन दोनों चीजों का फर्क है, सीधी सीधी बात है, ओके। और क्या डिफरेंस आता है ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे। आपको उसकी जरूरत नहीं है, स्पेशली इमेज क्रिएशन करने के लिए डेली की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो आई एम गोइंग टू शो यू दैट थिंग। सो ये एक मेरी फिक्स प्रॉम्प्ट है जो मैं बेसिकली यूज करता हूँ। विद द एक्सपीरियंस आई हैव डिजाइन दिस। तो आपका एक नॉर्मल लिखा हुआ आर्टिकल और जो मेरा लिखा हुआ आर्टिकल है उसमें इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा फर्क और डिजाइनिंग का बहुत बड़ा फर्क आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रॉम्प्ट राइट नाउ। देखते हैं, चलिए एक मैं छोटा सा यहाँ पे लेता हूँ, नॉर्मल टॉपिक ले रहे हैं, हाउ टू बिल्ड a successful career in journalism, ओके। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे ले लिया चैट जीपीटी के लिए, हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल करियर इन जर्नलिज्म। आई सिंपली कॉपी दिस प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा लेट मी नो। ये मैंने डाला NIPS एडिटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला इसने चैट जीपीटी ने आपके लिए यहाँ पे कंटेंट प्रॉपर्ली डिजाइन करना शुरू कर दिया। नाउ व्हाई इट इज इन प्रॉपर लेआउट। प्रॉपर लेआउट में होने का एक रीजन है, जो प्रॉम्प्ट दिया है उसमें बकायदा मेंशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करो, हेडर टैग में रखो, स्मॉल टैग्स में रखो, बोल्ड करो, इटैलिक करो एंड सो ऑन। तो गाइस यहाँ पे प्रॉपर्ली एक आर्टिकल आपका बिल्ड होके आ गया है। इतना स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे जो आया है वो इसलिए है क्योंकि प्रॉम्प्ट में कंडीशंस बहुत सारी दी गई है। यू कैन सी दिस, कितनी सारी कंडीशंस यहाँ पे प्रॉम्प्ट में दी गई है। बट एट द टाइम ऑफ द डे लाइक इसमें पूरा कंटेंट है, कोई रेफरेंस इमेजेस नहीं है, कोई रेफरेंस वीडियोस नहीं है। डूइंग दिस। दूसरा, अगर आपको 2000 वर्ड का आर्टिकल चाहिए, आप चैट जीपीटी में दे दो गिव मी एन आर्टिकल ऑफ 2000 वर्ड्स, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये 2000 वर्ड का आर्टिकल आपको देगा। ये अपना डेटाबेस फैच करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन फैच करेगा, एक आर्टिकल कंपोज करेगा, आपके सामने रख देगा। वो 2000 से कम ही होगा, 2000 टच नहीं करेगा, उससे ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ओके। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉ रहता है। सो इट्स हियर अगली। सो ये आर्टिकल मिला है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा रुक गया है, वेट अ सेकंड। कैन यू प्लीज चेक, नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। सॉरी गाइस, नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, 1 सेकंड प्लीज। तो चलिए, वैसे आप लोगों ने किस किसने कल एसईओ वाला टूल खोल के देखा था? एनीवन? ओके, नाइस नाइस नाइस। कोई दिक्कत आई? ठीक है जी मैम। ओके, आज उसके प्रॉपर एक एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आप उससे प्रोफिशिएंटली यूज कर सको। अगर आप किसी भी डेटा को देखते हो जिसमें स्पेशली हिस्ट्री पार्ट इंक्लूडेड है, कोई पास्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, या अगर उसके अंदर किसी और साइट का इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी के बारे में लिखना था, किसी साइट से मैंने एक इंफॉर्मेशन पिक की है, तो इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप अपने आर्टिकल में मेंशन करें कि इस सोर्स का, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन है और कहां पे है, ठीक है। गूगल को भी ये चीज अच्छी लगती है कि आपने उस साइट को एप्रिशिएट किया और आपके लिए भी अच्छा होता है। तो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स टुडे। ओके, सो गाइस ये स्टॉप हो गया था, अनफॉर्चूनेटली मुझे एक बार री कमांड देनी पड़ेगी इसमें। आई जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट दैट आर्टिकल। मीनवाइल एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे भी एक आर्टिकल जनरेट करना शुरू कर देता हूँ, एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी स्टेप। चैट जीपीटी जिसने बना रहा है गुड टू गो है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक कर दिया, ये जनरेट करता रहेगा।
मीनवाइल हम यहाँ पे भी वर्क कर लेते हैं, जो कि टूल पर दिखाया गया था। अगेन आई क्लिक ऑन क्रिएट अ ब्लॉग पोस्ट, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। द वेरी फर्स्ट थिंग इज अ मेन कीवर्ड। अब मेन कीवर्ड का कॉन्सेप्ट समझ लो। गूगल पे आप जाते हो, आप पूरी लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखते हो, आप एक दो वर्ड में अपनी सर्च क्वेरी लाइक सर्च कर लेते हो। दैट इज अ फोकस कीवर्ड और अ मेन कीवर्ड। जिस कीवर्ड पे आप चाहते हो सर्च इंजन या गूगल आपकी साइट को रैंक कराए, आपके आर्टिकल को रैंक कराए, दैट इज कॉल्ड अ मेन कीवर्ड। फॉर एन एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट मैक्सिमम लर्निंग, या अगर मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूं सुभारती के बारे में, तो मेरा फोकस कीवर्ड होगा सुभारती, ताकि गूगल पे जब भी कोई सर्च करे सुभारती, वहां पे मेरा आर्टिकल रैंक होना चाहिए। सो दिस इज द मेन कीवर्ड। और मेन कीवर्ड वो फोकस कीवर्ड होता है जिसपे आप अपने आर्टिकल को रैंक कराना चाहते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक द सेम वन। मैं यहां पे ले लेता हूं अपना टॉपिक। ओके, बिल्ड करियर इन जर्नलिज्म। अब मुझे आइडिया नहीं हो रहा है, मैं कंटेंट राइट रहा हूं, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। जिस चीज को एक आदमी या कोई भी यूजर आराम से पढ़ सके, समझ सके, उतनी चीज सक्सेसफुल है। मैंने अपनी इंग्लिश, मेरी बहुत हाई फाई इंग्लिश है, बहुत हाई एंड इंग्लिश है, या मैं बहुत अच्छा प्रोफेसर हूं उस फील्ड का, एंड आई एम यूजिंग वेरी हैप्पी वर्ड्स या बहुत हैवी वर्ड्स यूज कर रहा हूं, वो चीज किसी को समझ में नहीं आ रही, तो उसका क्या फायदा है। ओके, अगर यहाँ पे मैं एक चीज समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उस चीज का कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे कीप इट वेरी सिंपल। आई प्रेफर 7th ग्रेड और 9th ग्रेड, ये मेरे लिए अच्छा रहता है, तो आई जस्ट गो विद दिस थिंग, ठीक है। नाउ गाइस, नीचे आ गए। या आप चाहते हो कि आपके आर्टिकल का आपका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें हो, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। राइट नाउ फोन नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर। Then how many images you need? Do you need any pictures and so on? चलिए keywords ये आ गए, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। Conclusion, tables, H3 code, listing, quotation। हर फील्ड के लिए बड़े लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी quotations लिखी हैं, quotes लिखी हैं। क्या वो मेंशन करनी है? अगर करनी है तो yes, नहीं करनी है तो no। की टेक अवे, अच्छा इस सेक्शन को पर्सनल लेवल पे मैं कहूंगा आपसे हटा देना, उसका एक रीजन है। की टेक अवे मेंशन करने का मतलब है इट्स अ प्योर इंडिकेटर कि ये सॉफ्ट या ये आर्टिकल एआई से जनरेट हुआ है। ये की टेक अवे इसका फीचर है। अगर आप की टेक अवे को मेंशन करते हैं तो ये एक इंडिकेटर है कि ये एक एआई रिटन कंटेंट है। बाय चांस आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अगर आपने इसमें मेंशन किया हुआ है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेटर फॉर योर प्रोफेसर कि ये आर्टिकल एआई जनरेटेड है। तो इसे चाहो तो आप मना कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। नाउ गाइस, वी आर हियर, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे कनेक्ट टू वेब, एक्सेस, सोर्स लिंक, रियल टाइम सर्चेस, साइटेशन, सब कुछ आ जाएगा। जहां से आपकी इंफॉर्मेशन खा रहा है, विकिपीडिया से, गूगल की किसी साइट से, हेल्पलाइन से, किसी न्यूज पोर्टल से, जहां से भी वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उठाई गई है, उसका लिंक आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसका फायदा क्या है? आपने एक रिसर्च सबमिट की है, कल की तारीख में आपके सीनियर साहब से पूछते हैं आपको ये कोटेशन या ये स्ट्रक्चर कहां से मिला, तो उसके लिए आपका प्रूफ होगा कि सर ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है। ओके, तो ये चीज अपनी रीड के लिए अच्छी चीज है। देखो काम कर रहे हो, कहीं से आर्टिकल उठा रहे हो, तो पता होना चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है। सो आई एम नॉट चूजिंग मेनी ऑफ दीज ऑप्शंस। नीचे आया मैं, व्हाट्सएप अगर आपको इंक्लूड करना है, पिंटरेस्ट अपना इंक्लूड करना है, लिंक्डइन अपना इंक्लूड करना है, यू कैन गो विद दिस थिंग। ओके, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन रन। यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक किया और इसने मेरे लिए एक आर्टिकल बनाना शुरू कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। 3-4 ऑप्शंस यहाँ रह गए थे, स्पेशली टोन क्या रखनी है, फ्रेंडली रखना है, इंफॉर्मेशनल रखना है, प्रोफेशनल रखना है, ये जरूरी है डिपेंडिंग ऑन योर टॉपिक। गाइस, यहाँ पे कई सारे आर्टिकल जनरेट होते हैं, चीजें होती हैं, मैं खुद भी करता हूँ। आई विल नॉट लाई टू यू। एक साइट है दिखाऊंगा, उसके ऊपर मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यूज लिखता हूँ। मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ प्रोडक्ट एक्सपर्ट, ना वो प्रोडक्ट मैंने कभी यूज किया है, पर मैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन टूल्स को, उन प्रोडक्ट्स के बारे में लिखता हूँ, उनके आर्टिकल्स को अपनी साइट पे यूज करता हूँ, एसईओ करता हूँ, सर्च इंजन पे रैंक कराता हूँ। जब कोई यूजर उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए आता है और उस प्रोडक्ट को बाय करता है, मुझे एक इंसेंटिव मिल जाता है।
और वो इंसेंटिव छोटा है बड़ा कुछ भी हो सकता है, ओके, एंड आई विल शो यू अ लाइव थिंग फॉर दैट। सो गाइस ये आर्टिकल जनरेट हो रहा है, मीनवाइल चैट जीपीटी को देख लेते हैं। चैट जीपीटी ने भी हमें ये आर्टिकल पूरा फुल फ्लैश यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है, ओके डन। ये आपका एक प्रॉपर आर्टिकल यहाँ पे आ गया है। अब दो एआई टूल्स पे आपको दो आर्टिकल दिए हैं, कंपाइल द इंफॉर्मेशन, साथ में जोड़ो एक अपना आर्टिकल डिजाइन कर लो, अच्छा रहता है, ओके। चलिए देखते हैं उसने क्या बनाया है। और 88% इज डन, 90%। तो गाइस एक ये बन गया है, ये रहा, ये आर्टिकल यहाँ पे बन गया है। नाउ इट इज मोर प्रोफेशनल, व्हाई वी हैव यूज्ड द टोन एज प्रोफेशनल। ये आ गया है, इमेजेस आ गई हैं, एवरीथिंग इज गुड टू गो, ये रहा, ठीक है। ये छोटा सा आर्टिकल मेरा यहाँ पे तैयार होके आ गया है। दोनों आर्टिकलों को रखो, कॉपी पेस्ट करो, इंफॉर्मेशंस देखो किसने क्या पॉइंट्स कवर किए, किसने क्या कवर नहीं किए, उन्हें कंपाइल करो और कंपाइल करके अपना एक अच्छा सा आर्टिकल बना लो। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यही होता है कि आपका आर्टिकल यूनिक होगा, दूसरों से अच्छा होगा, ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और उसके चांसेस एसईओ की सारी टैक्टिक्स अप्लाई करने के बाद रैंक होने के चांसेस काफी अच्छे हो जाएंगे, ओके। नाउ गाइस लेट्स सी वन थिंग। चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं लास्ट इस चीज से रिलेटेड। वन साइट इज देयर, ये अगेन मेरी एक साइट है, वॉच दिस। इसके ऊपर सिर्फ मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यूज लिखता हूं और कुछ नहीं लिखता। आई जस्ट राइट अबाउट रिव्यूज। आप बुक्स के रिव्यू लिख रहे हो, प्रोडक्ट्स के लिख रहे हो, किसी कैमरास के लिख रहे हो, ठीक है, जर्नलिज्म वाले बुक्स के लिख रहे हैं, कैमरास के फीडबैक्स लिख रहे हैं, किसी न्यूज़ के बारे में लिख रहे हैं, सो ऑन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। वेट लॉस के प्रोडक्ट्स हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, हॉरोस्कोप से रिलेटेड हैं। कोई भी एक यूजर इन पे आता है, एनी यूजर कम टू दीस प्रोडक्ट्स, फॉर एन एग्जांपल दिस वन, वो इस पे आया जावा बर्न कॉफी रिव्यू। ये एक वेट लॉस कॉफी है, यू ड्रिंक इट और आपका वेट लॉस हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मैंने कभी यूज नहीं की, क्लियरली, ओके। सो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपके पास है या नहीं है, इट्स रियली डोंट मैटर, इट्स रियली डोंट मैटर। गुड प्रैक्टिस इज जो भी इंफॉर्मेशन आप मार्केट में उतारने वाले हो उसे एक बार क्रॉस चेक कर लो कि वो ठीक है या नहीं है। नाउ जब कोई यूजर इस आर्टिकल को आता है, वो देखता है भाई ठीक है, ये रहा, वो पूरा आर्टिकल पढ़ता है। हर आर्टिकल में कहीं ना कहीं मैंने अपना लिंक दिया है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, वो उस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो लेट मी सी, चलो एक चीज बताओ, व्हाट डू यू थिंक इस तरह के आर्टिकल से आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हो? एनी आइडिया? इस तरह के प्रोडक्ट्स बेच के ऑन एन एवरेज इंडियन मार्केट में आप कितना रेवेन्यू अपने लिए जनरेट कर सकते हो? एनी आइडिया? ओके, किस-किसने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना है? काफी लोगों ने सुना है। दैट्स मीन यू सर्च हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगेन वन ऑफ द निश रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, जिसका काम यही है, आप कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स और चीजें पिच करते हो, यूजर आपकी पिच को पढ़ते हैं, वो सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं एंड यू रिसीव एन इंसेंटिव या कमीशन। अगेन गाइस, ये सारी चीजें आपके प्रोफाइल से अलग हैं, ये आपके जॉब का पार्ट नहीं है, ये आपके रेगुलर लाइफ का पार्ट नहीं है, पार्ट टाइम चीज है। मैं रिलैक्स हूं, 1.5-2 घंटे का टाइम है, मैं कर रहा हूं, वरना करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो लेट मी शो यू वन ऑफ द अकाउंट्स। मैं एक अकाउंट शो करता हूं आपको। ओके, चलो सामने एक हुआ तो उसी को खोल लेते हैं। ओके, इट इज हियर। So I got a sale of $160 today as well. Unfortunately इसमें जितनी भी सेल्स आती हैं वो डॉलर्स में होती हैं, so into 80 कर लेना, वैसे 83-85 के आसपास चल रहा है, 80 कर लेना, you will get the figures. So let's see this guys. This week I have generated only $240 इस हफ्ते। अगर मैं 80 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 19,000 रुपए के आसपास हो गए, which is इस साल का सबसे लोवेस्ट है ऑलमोस्ट मेरा। बट ठीक है, लास्ट वीक it was $700, like $733, $200, $800। बिजनेस करता हूं, काम है आना, काम करना, विजिटर्स को या ग्राहक को अपनी वेबसाइट पे लाना, आने के बाद यूजर सामान खरीदेगा या नहीं खरीदेगा कोई गारंटी नहीं है। ओके, सेम गोज विद एवरीथिंग। इंस्टीट्यूट है, बच्चे आते हैं, कोर्स की डिटेल लेते हैं, एडमिशन लेगा या नहीं लेगा कोई गारंटी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं मैं अपना काम बंद कर दूंगा। मेरा काम है, मेरी शॉप है, डेली खोलना है, डेली पूजा पाठ करना है, सारी चीजें करनी है, ग्राहकों को बुलाना है, आएंगे, कोई 100 रुपए का सामान खरीदेगा, कोई 10,000 का खरीदेगा, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स। ओके,
बट दिस थिंग हैविंग मी लाइक हेल्पिंग मी जनरेटिंग अ गुड अमाउंट जो कि इंडियन करेंसी में काफी अच्छा हो जाता है. So I click on this, I click on Paychecks. Now guys, जब मैं Paychecks पे क्लिक करता हूं तो ये रहा. इस साल अभी तक इस वेबसाइट से अकेले मेरे पास आए हैं टोटल $41,000, 32 लाख रुपए के आसपास. 32 लाख ही बैठे ना इन 20, 32 लाख के आसपास एक वेबसाइट से. डिजिटल मार्केटिंग इसलिए मुझे अच्छा लगता है एंड दिस इज द रीजन मैंने अपनी लास्ट जॉब एज अ एवीपी छोड़ी थी. मेरी सैलरी का 5 टाइम्स ज्यादा मेरा वहां पे सैलरी था. ओके, क्लियरली क्यों छोड़ी थी? बिकॉज मुझे पता था पैसा तो मैं निकाल लूंगा. पैसा इज नॉट द थिंग्स ओवर हियर. इट इज अबाउट पैशनेट. आई एम पैशनेट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग. आई एम पैशनेट अबाउट दिस फ्रीडम जो मुझे मिल रही है. ये घूम रहा हूं, बातें कर रहा हूं, चीजें कर रहा हूं, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूं, चीजें सिखा रहा हूं और चीजें सीख भी रहा हूं. ओके, बिकॉज आई एम नॉट जेन एक्स. जेन एक्स का आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत अलग है. ठीक है, मैं पहले आर्टिकल पूरे पढ़ता था. आप लोग 3 सेकंड के अंदर चीजें स्वैप कर देते. ओके, 3 सेकंड में चीजें अच्छी लगी लाइक दिस, स्वैप स्वैप स्वैप. तो मुझे उस 3 सेकंड में कुछ मिरेकल करके दिखाना है ताकि आप लोग वहां पे रुको और उस चीज को देखो कि वो चीज क्या है. सो गाइस, अगेन द रीजन ऑफ शोइंग दिस इज वन, जो कल भी बोला था, डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ फाउंडेशन नहीं है. आप अपने तरीके से किसी भी चीज में काम कर सकते हो. एफिलिएट मार्केटिंग करो, ईमेल मार्केटिंग करो, एसईओ स्पेशलिस्ट बन रहे हो, अपने ब्लॉग्स लिख रहे हो, अपने ब्लॉग्स का एसईओ कर रहे हो, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है. एंड दिस इज नॉट अ वेरी हार्डकोर साइंस, क्योंकि ये सारे लाइव अकाउंट से मेरे सीधे ये रहे. किस प्रोडक्ट की सेल है, ये कहां से आई है मुझे देखना है, तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा. इट विल गिव मी एन आइडिया कौन से प्रोडक्ट की सेल है. ये रहा. ओके, नाउ गाइस यू कैन सी दिस. ये रहा, ये सेल आई है यूएसए से, एमए से. कौन सी स्टेट बैठती है उसकी, मैसाचुसेट्स आई एम नॉट श्योर. जॉइंट जेन, ये जॉइंट पेन का सप्लीमेंट है. जॉइंट पेन का सप्लीमेंट है जो सेल हुआ है और उस पे मुझे इंसेंटिव मिला है $160. ओके, $160 कितने हो गए? हाँ जी, $160 कितने हो गए? एनीवन इनटू 80, 12,800 रुपए के आसपास, सम अराउंड दैट. एक सेल 12,800 रुपए अंदर. ठीक है, ओके. तुम सब में से किस किस का पॉकेट मनी 12,000 रुपए या उस 10,000 से ऊपर है? हाथ ऊपर करो एक बार. 1 2 3 4 5. ओके, नाउ तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको जो घर वाले खर्चा देते हैं उससे अलग अगर 10,000 रुपीज मिल जाए तो काम चल जाएगा? कितने लोग हैं? प्लीज रेज योर हैंड. So guys, again the focus is जो मेरा वीकली टारगेट है, अगर आप उसे अपना मंथली टारगेट भी बना लोगे तो आपका काम चल जाएगा. ओके, आपका काम चल जाएगा. एंड इट इज नॉट वेरी हार्ड टू सेल. यस, इतना आसान भी नहीं है कि आज जाओगे हो गया. आज जो सीखने वाले हो कल अप्लाई करते हो. कल मैडम की एक वीडियो वायरल हो गई है, सर की वीडियो वायरल हो गई होगी, सर थैंक यू वेरी मच आपकी वजह से वायरल हो गई. नहीं यार, वायरल होने का कोई साइंस नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है. अगर वायरल होना होता, मैं आज की तारीख में यूट्यूब पे बैठे एक सेलिब्रिटी बना हुआ होता, लैम्बोर्गिनी या पोर्शे में घूम रहा होता, सो ऑन. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यस, आई विल अप्रिशिएट दैट कि आपने मुझे क्रेडिट दिया. आई विल अप्रिशिएट दैट कि आपने एफर्ट किया, आपने चीजें सीखी. ओके, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे आई वुड सिंपली से दैट्स योर लक, दैट्स योर लक. मैथ है, एल्गोरिथम है, ये सारी चीजें चल रही है, एक साइंस पे चल रही है, एल्गोरिथम पे चल रही है. हम उसे प्रैक्टिस करते हैं. वो कई बार बहुत जल्दी बूस्ट दे देती है, वो कई बार नहीं देते. ये मैं हूं, ये मेरे फ्रेंड है, पारी कर रहे हैं, बट व्हाट्स दैट, हो गया वायरल भाई. ठीक है, आज की तारीख वो लड़के एड्स कर रही है, चीजें कर रही है, वो उसका लक था. आई वुड सिंपली से वो उसका लक था. उसने कोई साइंस अप्लाई नहीं किया, उसने कोई मैथ अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया. बट यस, आई कैन अश्योर यू वन थिंग, 100 पीस ऑफ कंटेंट कंसिस्टेंट वे से डालोगे, 100 पीस ऑफ कंटेंट कंसिस्टेंट वे से डालोगे तो आपके 1 से 2 कंटेंट एक आपको अच्छी रीच दे देंगे. ओके, मेरा खुद का YouTube चैनल है, उसमें एक वीडियो थी जो एक न्यूज़ चैनल ने अपने चैनल पे शोकेस कर दी थी अबाउट द प्रॉपर्टीज इन देहरादून, लग्जरी प्रॉपर्टीज इन देहरादून. ठीक है, उस एक चैनल में ग्राफ मेरा यू रेस करके था, लाइक इट वाज लाइक दिस एंड इट वाज नेक्स्ट डे लाइक दिस. ओके, एक कंटेंट वायरल होता है, फिर वो चीजें मैनेज आपकी हो जाती है. सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर वन कंटेंट. ठीक है,
और वो प्रोफेशनल तरीके से भी पॉसिबल है। उल्टे सीधे प्रैंक वाली वीडियोस तो हो ही जाती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट प्रोफेशनल में करोगे तो बेटर रहेगा। ओके गाइस, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आर्टिकल जनरेशन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो प्लीज बताइए। सर जी सर। सर ये जैसे आपने स्टार्ट करता है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जी प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं है, or we would suggest you to please go with your own sense, do your more research before buying this product. We are not responsible for any profit or loss made using this product. ये एक डिस्क्लेमर हम प्रोडक्ट पे देते हैं कि देखो यार, अगर वो सही में पतला कर रही होती ना, सबसे पहले मैं लेता हूँ उसे, पर मैंने ट्राई नहीं किया, सो मुझे नहीं पता कि वो पतला करता भी है या नहीं करता है। एंड यूएस मार्केट में इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत सबके बिक रहे हैं। यहाँ आप मेडिकल स्टोर से खरीदते हो, चीजें खरीदते हो, वहां पे इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वांटिटी में बिकते हैं। जी, एनीथिंग एल्स सर? एंकर को पहचानते हो? एक सेकंड के अंदर यूट्यूब चैनल तैयार जहाँ पे ये भाई साहब बकबक कर रहे हो किसी भी न्यूज के बारे में। इसकी जगह आप अपनी फोटो यूज कर सकते हैं, इसकी जगह आप पूरा चैनल क्रिएट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न दीस थिंग्स। और गाइस ये नहीं है, मैं इन भाई साहब को यहाँ से हटा देता हूँ, आप अपनी फोटो लगाओ। डेफिनेटली मुझे अपना ब्रांड क्रिएट करना है, मुझे अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। ओके, सिंपली रिप्लेस दिस फोटो, यूज योर फोटो। वहां पे हाँ डेफिनेटली आर्टिफिशियल कुछ हो रहा होगा, आज आपको जान के पता चलेगा कि वहां बादल फट गया, XYZ जो भी कुछ है, जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, बट आपका फेस होगा। एटलीस्ट यू विल स्टार्ट गेटिंग दी ऑनलाइन प्रेजेंस। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन वी गो टिल हियर। पूरा ये एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा कैसे आप जनरेट कर सकते हो। फाइनल प्रोडक्ट डेफिनेटली मैं क्रिएट नहीं करूंगा, बिकॉज इट विल टेक अराउंड 45 मिनट्स एक वीडियो को रेंडर करने में, हैवी हो जाती है, पर एक एक स्टेप दिखाऊंगा। एंड अगेन गाइस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ग्रीन कर्टन इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड स्क्रीन, ब्रेकिंग न्यूज आता है ना, पहले लिखे हुए ब्रेकिंग न्यूज और साउंड आता है, ये सारी चीजें आप अपने लैपटॉप से कर सकते हो विदाउट इवन यूजिंग अ कैमरा। मुझे दिखाना है कहीं पे बाढ़ आ गई, ये रहा ग्रीन कर्टन, एक वीडियो इंपोर्ट करनी है, वो इतने से फ्रेम में लगा देनी है, हो गया काम। ओके, सो वी विल लर्न ऑल दोस थिंग्स टुडे।